Hello students, we are going to read chapter 1 Resources and Development of Geography class 10th. This is the last video and part 3 of this chapter. In first video, we have read about resources and its classification. In second video, we have read about Rio de Janeiro Earth Summit of 1992, Agenda 21, land, its degradation, causes, and solution. We are going to look in this video about soil, its types, soil erosion, causes of that, and solution. You're looking here, they are given the definition of soil. Soil is an unconsolidated, naturally occurring earth material which consists solid air and water. It was the upper part of the lithosphere and naturally occurred and made of solid air and water. It is very good to cultivate any crops and comparatively it is very soft with the rocks. We are going to look now types of soil. You are looking here 6 types. First, alluvial soil. Second, black soil. Third, red and yellow soil. Fourth, laterite soil. Fifth, arid soil. And last, forest soil. You are looking here in this map. On the top, there is given the black area, the area of Jammu and Kashmir and Uttarakhand and Himachal Pradesh, Sikkim and Arunachal Pradesh. This is the area of forest soil. Now, looking this area of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Assam and some part of West Bengal, Eastern Rajasthan. This is the area of alluvial soil. You are looking here the part of Western Rajasthan. This is the area of arid soil. Now you are looking the part of Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka. This is the area of black soil and right side you are looking the area of West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu. This is the area of red and yellow soil and left things remaining you are looking in the eastern and the western part of India that is related to laterite soil. Now we are going to look about the alluvial soil. Alluvial soil. It is most widespread soil covers entire northern plains, parts of Gujarat and Rajasthan and eastern coastal plains. It is very fertile, consists of potash, phosphoric acid and limestone. Ideal for sugarcane, paddy, wheat and other cereal crops. सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ सॉइल है और ये सॉइल गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में असम में पाया जाता है. इसमें पोटास, फॉस्फेरिक एसिड और लाइम पाए जाते हैं. ये शुगर केन, धान, गेहूँ और दूसरी तरह के क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ही ज़्यादा आदर्श सॉइल है. एलुवियल सॉइल को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भांगर और खादर. यू आर लुकिंग
मेड ऑफ ओल्ड एलुवियम एंड मेड ऑफ न्यू एलुवियम। भांगड़ सॉइल जो है, भांगर मिट्टी, वो पुराने एलुवियम, पुराने जलोढ़ों से बना हुआ है। एलुवियम किसे कहते हैं? नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी रहती है, उसमें जो सीड्स होते हैं, जो रेत होते हैं, जो सड़े गले मटेरियल होते हैं, उनको एलुवियम कहते हैं। तो भांगड़ जो है वो पुराने एलुवियम से बना होता है, जिसके कारण से आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं कि ये लेस फर्टाइल होता है। और ये दूसरा पॉइंट देख रहे हैं कि वेरी फार फ्रॉम रिवर्स, जो नदी घाटी होती है उससे बहुत दूर का ये क्षेत्र होता है। और तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि मोर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, इसमें कंकड़ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि खादर में अच्छाई ही अच्छाई बताई गई है। ये बताया गया है कि मेड ऑफ न्यू एलुवियम ब्रॉट बाई रिवर्स ड्यू टू फ्लड, नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया, और ख़ास करके तब जब नदियों में बाढ़ आ जाता है तब नए एलुवियम काफ़ी दूर तक मिट्टी पर फैल जाते हैं। तो वही क्षेत्र खादर कहलाता है। ये नदी घाटी के बहुत ही नज़दीक होता है, बहुत ही क्लोज होता है। जनरली नदी से लेकर 5-10 किलोमीटर का जो रेंज होता है उसके दोनों तरफ का, उसको आप खादर कह सकते हैं जब वहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँचता है। तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स, वेरी फाइन पार्टिकल्स, इसमें कंकड़ बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और ये मिट्टी बहुत ही बारीक, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। मोर फर्टाइल, जिसके कारण से ये अत्यधिक फर्टाइल होता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम, ये सभी उपजाऊ मीन्स फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजिंग थिंग्स हैं वो पाए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक हियर अबाउट ब्लैक सॉइल। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन के उत्पादन के लिए ये बेस्ट होता है, इसके कारण से इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। इट हैव हाई कैपेसिटी टू स्टोर मॉइस्चर, इसमें नमी को धारण करने की अत्यधिक, सबसे अधिक क्षमता होती है। तीसरा बताया गया है इट कवर्स द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र एंड मालवा प्लेट्यू। जनरली some part of Karnataka, Maharashtra, some part of MP and means that is related to Malwa Plateau। यहाँ पर इस तरह के सॉइल पाए जाते हैं, इसको रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। अब आप देख रहे हैं रेड एंड येलो सॉइल। इट डेवलप्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल ऑन क्रिस्टलाइन igneous rocks। Generally, the area of plateau region, it is made of black soil and red and yellow soil, and the remaining part is made of laterite soil। तो यहाँ पर इसकी विशेषता को बताया जा रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बारिश कम होती है, इग्नेस रॉक वाले इलाके में, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इट कवर्स साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, जो दक्षिण भारत का पठार है उसके दक्षिणी और पूर्वी भाग में ये पाया जाता है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्रों में पाया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू लुक लेटेराइट सॉइल इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, जहाँ पर खूब वर्षा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, वहाँ पर लेटेराइट सॉइल पाया जाता है। ह्यूमस कंटेंट इज़ लो, यहाँ पर नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। एज बैक्टीरिया डाई इन हाई टेम्परेचर, मिट्टी के लिए जो बैक्टीरिया जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो हाई टेम्परेचर के कारण सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो मर जाते हैं। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिकेट डोजेस ऑफ
मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसको भी खेती के योग्य बनाया जा सकता है अगर इसमें खाद डाल दिया जाए और फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक डाल दिया जाए तो ये खेती के लिए सही है। इट इज़ फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, हिली रीजन ऑफ ओडिशा एंड असम। इट इज़ वेरी यूजफुल टू ग्रो टी एंड कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये मिट्टी। अब हम देखने जा रहे हैं हम एरिड सॉइल को। एरिड, जैसा कि आपको मैंने बताया, मैप पर मैंने दिखाया कि जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान है वो एरिड सॉइल का एरिया है। इट इज़ रेड एंड ब्राउन इन कलर। ये कलर में रेड और ब्राउन कलर का है। सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। इसकी प्रकृति जो है वो नमकीन है और बनावट में ये बलुई मतलब बालू यहाँ पर पाया जाता है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। इट फॉर्म्स ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर एंड लैक्स ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर। जो एरिड सॉइल है ये तब बनता है जब किसी प्लेस पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है, पानी की कमी हो जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो जिसके कारण से नमी और ह्यूमस की कमी के कारण धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चेंज होती चली जाती है और वो बालू का रूप ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, नीड्स प्रॉपर इरिगेशन फॉर फार्मिंग। अगर फार्मिंग करनी है तो प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत है। समय समय पर सिंचाई होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ फाउंड इन द वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान एंड नॉर्थ वेस्ट part of Gujarat. Now in the last we are going to look forest soil. It is found in hilly region where there is sufficient rainfall. अपने मैप में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इस तरह की मिट्टी को देखा। इट इज़ फर्टाइल, लोमी एंड सिल्टी। ऐसे मिट्टी में सिल्ट्स पाए जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है। इन एरियाज कवर्ड विथ स्नो, सॉइल एक्सपीरियंस डिनोडेशन एंड द बिकम्स लेस फर्टाइल एंड एसिडिक। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ़ जम जाते हैं या बर्फ़ जमने के कारण जहाँ पर बर्फ़ पिघलने के बाद जहाँ पर पानी जमा हो जाता है वहाँ पर मिट्टी में सैलिनिटी आ जाती है और वो लेस मतलब कम फर्टाइल हो जाता है। अब लास्ट में हम देखने जा रहे हैं सॉइल इरोजन। द डिनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मीन्स मिट्टी का जो ऊपरी परत होता है उसमें जो कटाव होता है उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। यहाँ पर कारण बताया गया है सॉइल इरोजन का। तो दो तरह के कारण हैं जनरली, नेचुरल रीजन और दूसरा ह्यूमन मेड रीजन। तो नेचुरल रीजन तो आप समझते हैं कि ठीक है जो है वो है, लेकिन ह्यूमन मेड रीजन बहुत बड़ा रीजन है सॉइल इरोजन का। नेचुरल रीजन में आप देख रहे हैं कि विंड, वाटर और ग्लेशियर हैं। हवा के बहाव से मिट्टी का कटाव होता है, पानी के बहने से मिट्टी का कटाव होता है और ग्लेशियर के बहने पर भी मिट्टी का कटाव होता है। जबकि ह्यूमन मेड के द्वारा यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों, जंगलों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं जिससे मिट्टी का ऊपरी परत जो है वो हट जाता है और मिट्टी का कटाव होता है। ओवर ग्रेजिंग, जिसको कि आपने लैंड डिग्रेडेशन में भी देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के चरने से उनके खूर से मिट्टी का कटाव खूब होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड निर्माण, बिल्डिंग के निर्माण में जो ईंट वगैरह लगते हैं सब मिट्टी से बनते हैं, तो उससे भी मिट्टी का कटाव होता है। माइनिंग के लिए भी सबसे पहले मिट्टी के ऊपरी परत को हटाया जाता है, फिर उसके बाद नीचे से जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं उनको निकाला जाता है। तो इस तरह से भी इरोजन होता है। रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स, और लास्ट ये कारण बताया गया है कि कुछ लोग जो खेती करते हैं, जैसे कि वो एरिया जहाँ पर स्लोप पाया जाता है वहाँ पर वो जनरली खेतों की जुताई उस डायरेक्शन में करते हैं जिसमें पानी का बहाव रहता है। और
जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर वो अगर पहाड़ पर सीढ़ी नहीं बनाते हैं तो भी मिट्टी का कटाव बहुत तेज़ी से होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे इलाके में पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है, तो मिट्टी का कटाव होता है। अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर मिट्टी के कटाव को रोकने का क्या सॉल्यूशन है। पहला पॉइंट बताया गया है एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ों को लगाया जाना चाहिए। पेड़ों के जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़े रहते हैं और मिट्टी का कटाव बहुत कम हो पाता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग के लिए एक लिमिटेड एरिया होना चाहिए। जो चरागाह का एरिया है वहीं पर ग्रेजिंग होनी चाहिए और पशुओं को अलग से चारा वगैरह प्रोवाइड कराया जाना चाहिए जिससे कि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। तीसरा बताया गया है लिमिटेड माइनिंग। माइनिंग को कम से कम किया जाना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। अपने ज़रूरत के लिए ही सिर्फ हमें माइनिंग करनी चाहिए। काउंटर प्लाविंग इन द रीजन्स ऑफ स्लोप। जो ढाल वाले इलाके होते हैं वहाँ पर हमें काउंटर प्लाविंग करना चाहिए। काउंटर प्लाविंग का मतलब स्टूडेंट ये है कि हमें खेतों की जुताई ऐसे डायरेक्शन में करना चाहिए जो कि पानी के बहाव के उल्टे डायरेक्शन में हो, मतलब जो पानी के बहाव को रोक दे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लोप को दिखाया गया है, फिर कैसे मिट्टी को राउंड राउंड करके जोता गया है जिससे कि पानी के बहाव को रोका जा सकता है। इससे इसको काउंटर प्लाविंग कहते हैं और इससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। अब लास्ट पॉइंट दिया गया है, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पे सीढ़ीनुमा खेती की गई है और इससे क्या होता है कि पानी के बहाव की जो गति होती है वो बहुत कम हो जाती है जिससे कि मिट्टी का कटाव रुक जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे जो है सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है और यहीं पर आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।